أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے ہم اور آپ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی نصیحتوں کو یاد کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس پر چلیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے رحمت اللہ علیہ الاجمعین. حدیث نمبر 1523 ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالی آسان فرما دے یعنی توفیق عمل دے دے. تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی؟ شریک ٹھہرانے کی. تو چلیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شریک کے معنی کیا ہے اور شریک جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شریک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا یعنی کہ ملانا ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے کام، ہماری عبادت، ہمارے جو بھی عبادت ہے، روزے ہے، یہ ہر چیز میں ہم جو ہے شرک کرتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ہماری رگوں میں جو ہے یہ شرک جو ہے جیسے خون دوڑتا ہے اسی طرح آج کے دور میں دوڑ رہا ہے. ہم دیکھیں گے ہم نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، لیکن اس میں بھی شرک ہے. یہ بھی ایک شرک ہے. چلیے ہم شرک کے بارے میں اور آگے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اور کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کہا اللہ کی عبادت کر، دوسری شرک مت کر، شرک مت ٹھہرا اور نماز قائم کر. اب کیا ہماری نمازوں میں شرک نہیں ہے؟ کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا ہم شرک نہیں ہے؟ دیکھ لو کتنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں لوگ، موبائلوں میں دیکھ رہے. سمجھ لو اگر کوئی کسی کا فون آ جائے، رنگ ٹون بج جائے تو کسی کو جو ہے کوئی باجی میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو خلل نہیں ہوگا؟ اس کو خلل ہوئے گا کیونکہ آپ کا رنگ ٹون ہو جائے گا، اس کی نماز میں خلل ہوئے گا. اور آپ کے لیے قرآن ہے، ہر جو ہے جیسے انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، جیسے میں چاہیے آپ کو جو بھاشا میں چاہیے آج کی تاریخ میں قرآن ہے. تمل ہو، کناڈا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک مسجد میں ہوتا ہے. تو قرآن اٹھا کر پڑھنا بہت ضروری ہے. بھلے تو موبائل دیکھ رہے، موبائل کے اندر قرآن پڑھ رہے برابر ہے، لیکن اس ٹائم پہ رنگ ٹون ہو جائے، آ جائے، تب کیا ہوگا؟ دوسروں کی نماز خراب ہوگی. اور دوسری بات، ہم جب نماز میں جاتے ہیں تو کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ نماز میں ہمارے کو کتنے خیال آتے؟ شیطان پورے خیال لے کے آتا ہے. شیطان پورے خیال لے کے آتا ہے. جیسے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے، عبادت میں کھڑے ہوئے، اتنے میں ہمیں جو ہے جو بات نہیں یاد آتی وہ یاد آ جائے گی، اسے ہم یاد کرنے لگ جائیں گے نماز میں. تو کیا ہماری نمازیں جو ہے اس میں شرک نہیں ہے؟ وہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے. یہ شرک کو جو ہے بڑھاوا دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے شرک جو ہے یہ ایسے ہی بڑھتے بڑھتے اس کو جو ہے بڑھاوا دیتے رہتے ہیں. تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے عبادت میں، روزے میں، ہر چیز میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ہر وقت ہم جو ہے شرک کرتے رہتے ہیں. یہ ہمیں جو ہے خبر ہی نہیں ہوتی ہے. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز کے بارے میں کہا. نماز کے بعد کہا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کے لیے کہا. اس کے بعد رمضان کے روزے رکھو. اب زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں کیا ہمیں شرک نہیں آتا؟ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم دے رہے، کبھی کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے دل میں وہ رہتا ہے اور ہم برابر 2.5 حساب سے نکالتے ہیں. جیسے 2.5 کا، جیسے ہمارے پاس جو بھی چیز ہے تو اس کا 2.5 حصہ نکالنا ہوتا ہے، تو 2.5 حصہ اس میں نکالتے ہیں کہ اس میں کم کرتے ہیں، اس میں بھی شرک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آئیے پھر اس کے بعد رمضان کے روزے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے روزے رکھو. اب رمضان کے روزے میں جب یہ ابھی رمضان گیا ہے، کتنے لوگوں نے جو ہے صحیح روزہ رکھا، صحیح عبادت کی اللہ کی، صحیح سے جو جھوٹ نہیں بولے،
गीबत नहीं करे, किसके बारे में नहीं बोले, इस तरीके की बहुत कम। तो इसमें भी एक शिर्क है। तो ये जो शिरके हैं, जो है शिर्क जो है, ये छोटे छोटे शिरकों को बढ़ावा देकर ये बड़े को लेकर जाता है, बड़ा शिर्क करने के पर मजबूर कर देता है। तो ये सब पूरे शैतानी काम है। शैतान जो है हमें ऐसे सब नमाजों में, इबादतों में और रोजे रखों में शैतान आके भड़काते रहता है। शैतान आकर भड़काकर हमारी जो है इबादतों को, नमाजों को खराब करता है। उसके बाद आपने कहा बैतुल्लाह का हज करो। अब बैतुल्लाह का हज करने के लिए आपके पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपके पास अगर अहमियत है, पैसा है, दौलत है, तो आप हज कर सकते। तो हज करना भी चाहिए, जरूरी है। अब हज करने में भी हम जाते हैं हज के लिए, तो हम जाने से पहले इधर जब मालूम हो गया कि मैं हज को जा रहा हूं, तो लोगों को सबको पता चल जाता है, रिश्तेदारों में, आज उसके उधर दावत, आज उसके उधर दावत, कल उसके उधर दावत, उसके बाद में पार्टी, ये दोस्तों में सभी। उसके बाद उधर जाने के बाद मैं क्या हज सही करता हूँ? सही हज मेरे दिल में क्या है, हज करना है, लेकिन हज करके वहां से मैं जो भी सस्ती चीज है, जो भी सोना है, चांदी है, सस्ती चीज है, वो लेता हूँ, कपड़े हो, हर चीज है लेता हूँ। तो इसमें भी सोचो कि हमने सही इबादत की या नहीं की, ये हमें और आपको सोचना चाहिए। आगे चलिए, आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे भलाई के दरवाजे ना बतला दूं, दरवाजे ना बतला दूं भलाई के। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोजा ढाल है। आप समझ लो, रोजा ढाल यानी कि रोजा जो है, हम जब कब्र में है या हम मुश्किल में है, तो रोजा सामने आ जाएगा, ढाल बन जाएगा। हमारे रोजे सही होंगे तो, हमारी इबादतें सही होंगी तो। उसके बाद आपने कहा भलाई के दरवाजे ना बतला दूं। फिर आपने कहा रोजा ढाल है, सदका गुनाहों को बुझा देता है। सदका आप देते हैं तो अगर सही से देते, 2.5 हिस्सा जो है, जो सदके का, वो अगर आप बराबर से निकालते हैं हर साल में, तो आप हकदार हैं। तो सदका जो है गुनाहों को बुझा देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यानी इसके असर को दूर कर देता है। फिर आपने फरमाया जैसे पानी आग को बुझा देता है। फिर आपने कहा कि रात के पिछले पहर में नमाज पढ़ना, पिछले पहर में यानी कि रात में, आधी रात को 2 रकातें या 4 रकातें जो भी है आप पढ़ना चाहिए। कौन सी? तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद पढ़ने के लिए आपने फरमाया। तहज्जुद भी हमें जो है, हम देखो, हम सोचो कितने हम जो लोग हैं कि हम तहज्जुद के लिए उठते हैं या हम क्या करते हैं। और अल्लाह ताला ने तहज्जुद जो है पढ़ने वालों को जो है, उसकी जो भी, जब वो दुआ करता है तहज्जुद की नमाज पढ़ के, तो उसकी दुआ को कबूल करते हैं अल्लाह ताला। क्योंकि रात के आधे पहर में जो है अल्लाह ताला 7वें आसमान से नीचे आते हैं, एक हदीस है, तो नीचे आते हैं, जो भी मतलब जिसकी भी जरूरत है आप मांग सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि तहज्जुद पढ़ना जरूरी है। फिर आपने जो है ये आयत तलावत की, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मसाजिही, अनिल मसाजी, ये है सूरह सजदा की आयत नंबर 15। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मसाजी, आपने तलावत कर फरमाई आयत। उसके बाद में इनके पहलू बिस्तरों से, फिर आपने फरमाया इनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं, इनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं, यहां तक कि यामलून तक पहुंच गए। फिर आपने फरमाया क्या मैं तुझे दीन का सर, इसका सतून और इसकी कोहान की लंबाई ना बतला दूं? आपने फरमाया, मैंने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर बतलाइए। आपने फरमाया दीन का सर इस्लाम है, दीन का सर इस्लाम है, इसका सतून नमाज है, और इसकी कोहान की बुलंदी जिहाद है। अब कोहान की बुलंदी जिहाद, हम और आप जिहाद को समझते क्या है, ये तो हम और आप जानते हैं कि क्या समझते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो है जिहाद इन सब चीजों की बुलंदी है, जमीन से लेके आसमान तक इसकी बुलंदी क्या है। चलिए हम और आप
समझते हैं कि जिहाद क्या है। आयत नंबर 63 सूरह अल इमरान आयत नंबर 63। कुल यहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिशैयन वला यतखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबिन मिनल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुल अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों को बुलाओ अहले किताब की तरफ, उनके साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से बहस करो। और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह जो है सूरह नहल में आयत नंबर 124 उदू इला सबीली रब्बिकल हिकमा व मौइज़तन हसना व जादिलहुम बिल्लती हसन। उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों को बुलाओ हुस्नत के साथ, इज्जत के साथ, उनसे अच्छी बहस करो, अच्छी बातें करो। इस्लाम की दावत देने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं। और कुरान में कई जगह पे कहा है अल्लाह ताला ने कि लोगों को बुलाओ, इस्लाम की तरफ बुलाओ। ये है सबसे बड़ा जिहाद, इसे कहते हैं जिहाद। क्या हम और आप जो है आज सुबह से लेकर शाम तक किसी एक आदमी को दावत दिए इस्लाम की? ये हमें और आपको सोचना है, ये सबसे बड़ा जिहाद है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या मैं तुझे ऐसी बात न बतलाऊं जिस पर इन सब का दारो मदार है? मैंने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आपने अपनी जुबान पकड़ी और फरमाया, इसको रोके रखना। आपने अपनी जुबान पकड़ी और कहा, इसे रोके रखना। मैंने अर्ज किया कि हम जुबान की जरिए से जो गुफ्तगू करते हैं इस पर भी हमारी गिरफ्त होगी। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए या बद्दुआ नहीं, बल अरबी माहोरा है। जहन्नम में लोगों को इनकी जबानों की कटी हुई खेतियां ही औंधे मुंह करेंगी। आपने फरमाया, जहन्नम में लोगों की जुबान की कटी हुई खेतियां ही औंधे मुंह करेंगी। बोलो, हम सुबह से हैं आज तक, सुबह से हमने कितने झूठ बोले, कितने गिबतें की, कितने जो है गलत बातें करी, और कितने जो है माल हमने कमाया झूठ बोल करके, किसे गाली दे करके, किसे झूठ बोल करके। फिर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर हम बाहर निकलते हैं। तो सोचो हमारे अंदर शिर्क कैसे जो है खून की तरह दौड़ रहा है। जैसे हमारे अंदर खून जैसे दौड़ता है उसी तरह जो है ये शिर्क हमारे अंदर ऐसे दौड़ता है। तो हम जो है इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, लोगों को हर जो है इबादत है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसी के साथ ये शिर्क दौड़ रहा है। अब ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कहा है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इसके लिए मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब ये छोटे मोटे शिर्क जो है हम सोचते हैं कि हमने शिर्क नहीं करे, हमारी नमाजें सही, हमारी इबादतें सही, हमारे रोजे सही, हम सोचते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम शिर्क कर रहे। ये उस तरीके का शिर्क है। अभी देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हमारी कटी हुई जबानें जो है औंधे मुंह करेंगी। हमारी जो जुबान की कटी हुई खेतियां जो है हमें औंधे मुंह करेंगी जहन्नम में। इस कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि सबसे पहली चीज है हम जुबान। हमारी जुबान सही है, हमारी इबादत सही है, हमारे रोजे सही है। पहली बात है जुबान। जुबान हमारी सही होने से हर चीज जो है हमारी सही रहेगी। सुनन तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को रिवायत किया है और इसे सही और हुस्नी कहा है, सही और हुस्नी हदीस कहा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु अन्तस्तगफिरुका व तूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।